Hello. The question is a dipole P is equal to P naught x. That is, x cap is kept at the origin. The potential and the electric field due to dipole on y axis at distance d separated by. So let's make a coordinate system in x and y. Suppose fine. This is our coordinate system represented here x y. This is a dipole of minus P naught x. So dipole will be in this direction minus of P naught x cap, and we have to find at distance d. This is our distance d. We have to find here electric field and potential. So we know potential in equatorial plane. Potential in equatorial plane, that is 0. And electric field at this point is given by what? Minus of Kp divided by r of q. R is this distance, so I can write minus k is what? 4 pi epsilon naught. Fine. R I can write off dq, and this is what? P. Fine. And direction will be in this. That is opposite of P. This minus sign shows that electric field is in opposite direction of the P. So first option is incorrect. Second is minus P. No, there is no 4. So only option 3 that's showing correct result. I hope you have got your answer. Determine the electric dipole moment of the system of three charges placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാർജസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. One is minus 2q and the other two are plus 2q plus q's. So here is the minus 2q, here's one plus q, and here's the other plus q. And this length is L, and it forms an equilateral triangle. Now it looks like two dipoles, plus q minus q plus q minus q arranged in at an angle 60 degrees. Now, in this situation, we can find the total electric dipole, P, is equal to 2 times P times cosine 60 divided by 2. It's because you have this way a direct electric dipole, this way an electric dipole. You add them, and you're going to get that in this direction over here. So, and that will be minus a j direction. So let's do that math. That is equal to 2 times q L cosine 60 over 2 is square root 3 over 2, and that's equal to square root 3 q L, and that's in the negative j direction. Thank you. Hello everyone, let's start the question. Question says that an electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. The value of electric dipole moment is 10 to the power minus 29 coulomb meter. What is the potential energy of electric dipole? So in this question we have to calculate potential energy, and the potential energy can be written as in vector form, that is P into E vector. P vector is the dipole moment, and E is the electric field. Okay, so if we write this in
scalar quantity, then it will be minus p e cos theta, and theta in the question is given as 45 degree. So if we substitute the values, minus p, which is 10 to the power minus 29, into E is 10 to the power 3, 1000 volt per meter, so it is 10 to the power 3 into cos 45. And if we solve this, it will be here 10 to the power minus 29 and here 10 to the power 3, so it will be 10 to the power minus 26 into cos 45 is 1 by root 2, and we solve this, we will get minus 0.707 into 10 to the power minus 26 joule. Okay, or we can write minus 7.07 into 10 to the power minus 27 joule. Okay, so our answer is the potential energy of dipole is minus 7.07 into 10 to the power minus 27 joule. Thank you. So we are going to discuss a problem of JEE Main 2019 physics exam. Problem is charges minus q and plus q located at A and B respectively constitute an electric dipole. Distance AB is equals to 2a. तो AB दो पॉइंट्स हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं. दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 2a है. चलिए 2a लिख देते हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू ए पे और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू. ठीक है, अब बोला गया है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, तो O बना देते हैं डाइपोल का मिड पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट हो गया O. अब बोला गया है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P वेयर OP इज इक्वल्स टू Y. ठीक है, P पॉइंट पे परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलरली P पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक चार्ज प्लेस करना है यहाँ से. ठीक है, AB के परपेंडिकुलर O पॉइंट से होते हुए एक चार्ज प्लेस करना है यहाँ पे P पॉइंट पे. ठीक है, ये रहा पॉइंट P, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q. ठीक है, और बोला गया है कि जो डिस्टेंस है OP ये है Y, तो इसको बना देते हैं Y. ये A हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है O AB का, और ये भी A हो जाएगी क्योंकि 2A टोटल डिस्टेंस. ठीक है, अब बोला गया द चार्ज Q एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. ठीक है, अब जो चार्ज Q है ये वाला, ठीक है, इसको क्या होता है, इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होता है जब ये पॉइंट P पे रखा हुआ है. ऑब्वियसली होगा, ये दो चार्जेस के नियर रखा हुआ है, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, इसको या तो कोई अपनी तरफ खींचेगा या इसको अपने से दूर भगाएगा. वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे. If Q is now moved along the equatorial line to P dash such that OP dash is equals to Y by 3, the charge force on Q will be close to. ठीक है, अब इस चार्ज Q को अगर मैं इसी लाइन पे OP पे थोड़ा नीचे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ मान लो. ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, Y by 3 पे, तो पूछा गया है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा. तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि अभी कितना लग रहा है. ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. पहले तो इसको ऐड ऐसे अटैच कर लेते हैं. तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी थीटा. फिर मैं ये बोलूँगा कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा. ठीक है, अब देखो चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, जो माइनस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचता है. तो इस क्यू कैपिटल क्यू पे ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये किधर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ये. ठीक है, ये रेड कलर से मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाऊंगा. और जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल पे कहाँ फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे वेक्टोरियल सम से, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टोरियल सम करेंगे हम. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे.
तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स करते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ ये फोर्स है F, ठीक है। फोर्स F होता क्या है, जो हमारा फोर्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर Q1 इज द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, Q2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 और R स्क्वायर होती है उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो भाई हमारा Q1 क्या है, अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के लिए माइनस Q और ये प्लस Q, जो ये कैपिटल Q चार्ज रखा है, तो Q1 हो गया, मान लो किसी भी चार्ज को Q1 मान सकते हो, कैपिटल Q को Q1 मान लेता हूँ और छोटे वाले Q को Q2 मान लेता हूँ, और R स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है डायग्राम में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिखते टाइम आप फोर्स का यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं लिखी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फोर्स 2 की, इसको मैं F1 बोल लेता हूँ और इसको मैं F2 बोल लेता हूँ। जो प्लस चार्ज लगा रहा होगा, ठीक है, इस Q पे, वो भी यही होगा, सेम ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं Q पे, वो दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F। तो अब मैं डायग्राम में आगे बढ़ता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से रिजल्ट निकालने के लिए। ये भी F है, तो भाई ये फोर्स भी F हो गया, ठीक है। अब ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ओके, ये एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। अब इस वाले एंगल का, ये वाला जो फोर्स है जिसको मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे F cos थीटा, और यहाँ पे इस साइड में आएगा F sin थीटा, ठीक है। इसी तरह से इस वाले फोर्स का इधर कंपोनेंट आएगा अगेन F cos थीटा, और ऊपर कंपोनेंट जाएगा F sin थीटा, ठीक है। अब F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स लिखते हैं F नेट ऑन चार्ज Q, ठीक है, उसको लिखते हैं F नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2F cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें लिखनी है और F की वैल्यू लिखनी है। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से डायग्राम से लिख सकते हैं, थीटा ये है, cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और F की वैल्यू हमारे पास KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल ही रही है, तो यहाँ से लिखते हैं 2, F की वैल्यू लिखते हैं KQ डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं a डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में एक और बात बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि y जो है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, ठीक है। y की वैल्यू 2a से बड़ी है, तो ऑब्वियसली a से भी बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है y और a का, और a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे, 2KQ a डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए वाई जो है वो ए से बहुत बहुत बड़ा है, तो वाई स्क्वायर ए से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 2KQ a डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब अगर मैं बात करूँ कि इसी सेम एक्सिस पे, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, ये हमारा डायग्राम अब कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और ये वो लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा पहले रखा हुआ था कैपिटल Q चार्ज, अभी उसको थोड़ा नीचे लिया है और यहाँ पे रख दिया गया कैपिटल Q को, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है O पॉइंट से, ये जो O मिड पॉइंट था, ये है y/3, ठीक है। y/3 हो गई डिस्टेंस। चलिए फिर से सेम काम करते हैं, अभी भी चेंज तो कुछ नहीं हुआ है, बस वो डिस्टेंस चेंज हुई है जो हमने पहले y ली थी, अभी वो डिस्टेंस कितनी हो गई है, y/3। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, अभी भी फोर्स यहाँ ही लगेगा इस चार्ज के कारण, और इस चार्ज के कारण फोर्स यहाँ लगेगा। अगेन इसका कंपोनेंट एक इधर और इसका कंपोनेंट एक इधर, और इन दोनों का एक एक कंपोनेंट इधर, तो फोर्स अभी फिर से वही आएगा 2F cos थीटा, ठीक है। 2F cos थीटा आ गया। 2F की वैल्यू लिख देंगे KQ अपॉन आर स्क्वायर। अभी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अभी देखो ये a है, ये a है, और ये y/3 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस चेंज हो गया, तो
एक्सिस, जब इनके बीच की डिस्टेंस लिखूंगा चार्जेस की, तो वो आ जाएगी वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो वो भी चेंज हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल हमारे थीटा थीटा रहेंगे मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब हमें कंपेयर करना है कि जब इस पॉइंट पे था हमारा चार्ज क्यू, तो उसको कितना फोर्स फील हो रहा था, और इस पॉइंट पे आने के बाद कितना फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस से ये फोर्स की वैल्यू जो थी एफ नेट, ये इसको मैं बोल देता हूँ एफ नेट पी पॉइंट पे, और अभी जो हमने फाइंड किया है उसको बोल देता हूँ एफ नेट एट पी डैश पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा ही हमने किया है, वो वैल्यू ये है। तो इनको कंपेयर करते हैं, एफ नेट की वैल्यू देखते हैं क्या है। एफ नेट की वैल्यू 2k क्यू क्यू ए अपॉन वाई क्यूब, तो वैल्यू जो मुझे लिखनी है वो है एफ नेट एट पी इज इक्वल्स टू 2k क्यू क्यू ए बाई वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ से भी हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, सेम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है कि y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो y a से भी बड़ा होगा जब 2a से बड़ा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फोर्स की वैल्यू 2k क्यू क्यू ए क्यू है डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बाय 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2k क्यू क्यू ए डिवाइडेड बाय वाई क्यूब और डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो अब हमें इन फोर्सेस को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, एफ नेट एट पी डैश और एफ नेट एट पी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एफ नेट एट पी डैश पी है जो 2k क्यू क्यू ए अपॉन वाई क्यूब, तो ये तो यही वैल्यू है। ठीक है, यही वैल्यू होगी ये तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट एट पी डैश जो है, ठीक है, वो क्या होगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 2k क्यू क्यू ए अपॉन वाई क्यूब एंड विच इज इक्वल्स टू एफ नेट एट पी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 27 टाइम्स एफ नेट एट पी, यानी कि जो पी डैश पॉइंट पे फोर्स लगेगा वो 27 टाइम्स होगा पी पॉइंट पे फोर्स से। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर हमें ऑप्शन में दिखता है तो उसको हम पिक कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर के एफ नेट एट पी डैश विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स एफ नेट एट पी। ठीक है, पी डैश पे जो फोर्स होगा वो पी पे जो फोर्स है उससे 27 टाइम्स हैवी होगा, एक्स्ट्रा होगा, या 27 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा बोल सकते हैं।